السلام علیکم ایوری ون۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان بچوں کے لیے جو کہ لاسٹ سیمسٹر میں ہیں، کیونکہ لاسٹ سیمسٹر میں انہیں ریسرچ کا کام کرنا ہوتا ہے اور ریسرچ کا کام کرنے سے پہلے انہیں ایک پروپوزل دینا ہوتا ہے اپنے سپروائزر کو، جو کہ ریسرچ پروپوزل کہلاتا ہے۔ بہت سارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ریسرچ پروپوزل ایکچولی میں ہوتا کیا ہے۔ تو ریسرچ پروپوزل میں آپ نے ریسرچ کا اسکیچ بنا کے اپنے سپروائزر کو دیتے ہیں کہ آپ اپنی ریسرچ میں ایکچولی میں کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کی ریسرچ کس کے بارے میں اور آپ اپنی ریسرچ کو کیسے کنڈکٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ اس میں میتھڈ لکھتے ہیں، آپ اس میں ٹول لکھتے ہیں، اپنی بجٹنگ بتا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا لٹریچر ریویو بتا رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ریسرچ کس کے بارے میں آپ کس طرح سے کنڈکٹ کریں گے۔ پھر ریسرچ پروپوزل آپ اپنے سپروائزر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اگر سپروائزر کو یہ ریسرچ اچھی لگتی ہے تو یہ آپ کا ریسرچ پروپوزل ایکسیپٹ کرے گا، دین آپ ریسرچ پہ کام کریں گے۔ تو تھوڑی ہم بکش ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ریسرچ پروپوزل کیا ہوتا ہے۔ ریسرچ پروپوزل میں ریسرچر کیا کر رہا ہوتا ہے، پلان کر رہا ہوتا ہے واٹ ٹو ڈو ان دا فیوچر، اور اپنی پروپوزل میں لے آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، پرابلم کو ڈسکرائب بھی کر رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی ہاؤ دا ریسرچ ول بی کنڈکٹیڈ۔ وہی والی باتیں کی میں نے ایزی ورڈنگ میں بتایا، بک میں بکش ڈیفینیشن میں تھوڑی سی اچھی فلاوری ورڈس یوز ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ڈیفینیشن بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ریسرچ پروپوزل از اے ڈاکیومنٹ دیٹ ڈسکرائب دا اسینشیل فیچر آف دا اسٹڈی ٹو بی کنڈکٹیڈ ان دا فیوچر as well as a strategy whereby the inquiry may be logically and successfully accomplished۔ اس میں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ریسرچ پروپوزل میں اپنے ایسینشیل فیچرز بتاتے ہیں اسٹڈی کے، اور ہم اس کو کنڈکٹ کیسے کریں گے ان فیوچر یہ بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجی بھی بتاتے ہیں، اپنی انکوائری کو لاجیکلی اور سکسیسفلی ڈیزائن کرتے ہیں۔ لاجیکلی کیسے، آپ ایسا نہیں ہوگا فوراً آپ کا رزلٹ آ گیا، فوراً نہیں ہوگا، پہلے تو آپ میتھڈ کو سلیکٹ کریں گی، پھر آپ اپنے میتھڈ کا پورا پروسیجر بتائیں گی، پھر ٹول کو سلیکٹ کریں گی، ایسے ہی بیچ بیچ میں کام نہیں ہوتا، اس کی پوری ایک سسٹمیٹک اور لاجیکلی وے میں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے ریسرچ پروپوزل کی، سب سے ایزی، اور میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں جو بتایا وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ریسرچ پروپوزل ایک اسٹرکچر پریزنٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو پلان ہے وہ ہے کیا اور آپ اس کو کیسے کنڈکٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر میں بتا رہی ہوں جسٹ پیئر لرننگ افیکٹس اسٹوڈنٹس پرفارمنس، تو پہلے میں بتاؤں گی کہ پیئر لرننگ ہے کیا، پیئر لرننگ ہوتی کیا ہے۔ میں اپنے سپروائزر کو تھوڑا سا کنونس کرنے کے لیے تھوڑا انٹرو دوں گی، لٹریچر ریویو دوں گی، پھر میں نے پرابلم لی ہے اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے میں میتھڈ سلیکٹ کروں گی، اپنے ڈیٹا انالائز کے ٹول سلیکٹ کروں گی، تو میں پورا ایک اسٹرکچر ڈرا کر کے ایک سپروائزر کو دے رہی ہوں کہ بھائی ریسرچ ہے کیا اور یہ ریسرچ کی پرابلم کیسے سولو ہوگی، مطلب میں کیا کروں گی، ریسرچ کیسے کنڈکٹ کروں گی، اور ایٹ دی اینڈ میرے ریزلٹ کیا آئیں گے۔ تو ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں، ریسرچ پروپوزل کہتے ہیں۔ اب ریسرچ پروپوزل میں ایسا کیا ہوتا ہے، اس کے مین کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ریسرچ پروپوزل کے مین ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں۔ ریسرچ پروپوزل کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی پرابلم کو سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، ریسرچ کرنے کے لیے ہی آپ کو سب سے پہلے ریسرچ پرابلم سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ریسرچ پرابلم جو کہ آپ نے سلیکٹ کی ہے اس کی سگنیفیکنس بتانی ہوتی ہے۔ سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے، اپنی پرابلم کی آپ امپورٹنس بتائیں گے، جیسے کہ یہ ٹاپک میں نے کہا ڈز پیئر لرننگ افیکٹ اسٹوڈنٹس اسکور یا پرفارمنس، تو میں اس کی امپورٹنس بتاؤں گی کہ پیئر لرننگ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ ریویو آف دا لٹریچر، ریویو آف دا لٹریچر کیا آتا ہے، اس کو دوسرے ورڈ میں ہم کہتے ہیں لٹریچر ریویو۔ لٹریچر ریویو میں کیا پڑھتے ہیں ہم، ڈفرینٹ ٹائپ کے جرنلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم آرٹیکلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر رائٹر نے کیا اس پرابلم کے بارے میں کہا ہے، اگر ہم اس کو سائٹیشن کے تھرو مینشن کرتے ہیں تو وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے، لٹریچر ریویو بن جاتا ہے۔ اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ سائٹیشن کیا ہوتی ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ سائٹیشن آپ کیسے ڈالتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ڈسکشن آف دا پروسیجر۔ پروسیجر مطلب آپ پورا میتھڈ بتاتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کیسے کنڈکٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ
डेटा कलेक्शन के मेथड भी बताएंगे और एनालिसिस भी बताएंगे। डेटा कलेक्शन के मेथड क्या मतलब, मैंने ये टॉपिक क्या डस्ट पेयर लर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो मैं इसमें कौन सा मेथड यूज़ करूँगी डेटा कलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर यूज़ करूँगी, इंटरव्यू यूज़ करूँगी। ओके, ये सारे डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं। कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, अगर हमने क्वेश्चनर इस्तेमाल किया तो हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे। ओके, ये भी बताना होता है हमें रिसर्च प्रपोजल में। इसके अलावा हम अपनी स्टडी की लिमिटेशन बताएंगे कि हमारी स्टडी कहाँ तक लिमिटेड थी। अब रिसर्च प्रपोजल में आप कौन कौन सी हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, ये वाली स्लाइड आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने हेडिंग्स मेंशन की है कि आप रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सी हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग जो हम रिसर्च प्रपोजल में लगाते हैं दैट इज़ टाइटल ऑफ द प्रपोजल। अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का टाइटल, जैसे कि डज पेयर लर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट्स स्कोर, तो ये मेरी क्या है टाइटल है। तो ये मैं अपने रिसर्च में कहाँ बिल्कुल फ्रंट में डालूँगी, सेंट्रलाइज करके डालूँगी। नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो मैंने ये रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली है, अब इसका थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और पेयर लर्निंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगी कि कैसे स्टार्ट हुआ, ये कौन सा मेथड से ये स्ट्रेटजी निकली है। देखो पेयर लर्निंग स्ट्रेटजी है, अब ये कौन से मेथड से निकली है, कोऑपरेटिव मेथड में हम करवाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि पेयर लर्निंग का बैकग्राउंड क्या है। थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आप क्या लिखते हैं, ध्यान से ज़रा सुनना। आपने ये वाली प्रॉब्लम क्यों सेलेक्ट की है, ये हमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में लिखनी है। आप अगर मैं अपनी डज पेयर लर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ओके, ये वाली प्रॉब्लम का मैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी इसमें कि मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि स्टूडेंट्स की पेयर लर्निंग को इग्नोर किया जाता है क्लासरूम में। इतना ओवर बर्डनाइज होती है टीचर, वो सिर्फ सिलेबस को ख़त्म होने पर ध्यान देती है, पेयर लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग सबको इग्नोर करती है। मैं ये वजह लिखूँगी कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने ये वाली ही प्रॉब्लम क्यों सिलेक्ट की। अच्छा, 4 है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप इसमें बताएंगे कि आपकी रिसर्च में आप बाकायदा क्या करने जाते हैं, आपका गोल क्या है। रिसर्च क्वेश्चन, अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, और अगर आपका मिक्स मेथड है तो आप ये दोनों ही बनाएंगे, रिसर्च क्वेश्चन भी और रिसर्च हाइपोथेसिस भी। रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में मेरी पिछली वीडियो मौजूद है। हाइपोथेसिस 3 टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं थर्ड हेडिंग में और फिफ्थ हेडिंग में, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में मैंने बता दिया, आपको ये बताना है आपने यही वाला ही टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आपको बताना है कि आपकी रिसर्च से किन किन लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। अगर मैं अपनी रिसर्च के टॉपिक की बात करूँ पेयर लर्निंग वाले टॉपिक पे, तो मेरी रिसर्च से टीचर्स को फ़ायदा होगा, स्कूल वालों को फ़ायदा होगा, इवन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा। तो जिन जिन को फ़ायदा होगा मैं सब इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में मेंशन करूँगी। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। ये रिव्यू ऑफ द लिटरेचर चैप्टर 2 में आता है सबसे पहले, तो आप चैप्टर 2 की हेडिंग डालेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी हेडिंग पढ़ी है ये चैप्टर 1 की हेडिंग है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर चैप्टर 2 में आता है, उसमें अब पेयर लर्निंग के बारे में मैं 5-6 आर्टिकल पढ़ूँगी। 5-6 आर्टिकल में कुछ राइटर ने इनके बारे में लिखा होगा कि पेयर लर्निंग कैसे अच्छी होती है, तो मैं वहाँ से आकर उन राइटर के थॉट्स को, उनकी कई भी बातों को पिक करती हूँ और रिफ्रेश करके अपने रिसर्च में लिखती हूँ और साइटेशन भी लगाती हूँ। तो ये मेरी क्या होती है, लिटरेचर रिव्यू बन जाता है। अब हम लिटरेचर रिव्यू कर क्यों रहे होते हैं, अब मैं दूसरों की बातें, दूसरे रिसर्चर्स की बातें अगर मैं अपने रिसर्च में या रिसर्च प्रपोजल में लिखूँगी तो मेरी रिसर्च क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऑथेंटिसिटी होगी मेरी रिसर्च की। तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट पर चलते हैं हम।
अब लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स लिखने होते हैं। ये डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स वैसे तो 7 पॉइंट पे है, लेकिन आप उसको चैप्टर नंबर 1 में ही कर देना। चैप्टर नंबर 1 में कब आप सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी से पहले ही कर लेना, देन आप लिटरेचर रिव्यू करना। मैं फिर से आपको बता दूँ, ये डेफिनेशन ऑफ की टर्म चैप्टर 1 के एंड में ही करना। की टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि मैं अपना टॉपिक में फिर से आपको बता रही हूँ, डज पीयर लर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे पीयर को पहले आप डिफ़ाइन करेंगी, फिर पेयर लर्निंग को आप डिफ़ाइन करेंगी, फिर स्टूडेंट को डिफ़ाइन करेंगी, परफॉर्मेंस को डिफ़ाइन करेंगी। तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ की टर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लिमिटेशन ऑफ डिलिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है, आपकी रिसर्च कहाँ तक लिमिटेड है और आपकी रिसर्च ने किस किस एरिया को फोकस नहीं किया, वो आपकी डिलिमिटेशन बन जाएगी। इसके अलावा आपको थर्ड चैप्टर में मैं आपको लिमिटेशन और डिलिमिटेशन का भी बता दूं, ये आपको कहाँ लिखनी है, ये आपको चैप्टर 1 में ही लिखनी है। आप कब लिखेंगे, की टर्म से पहले लिख देना डिलिमिटेशन और लिमिटेशन। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू लिखना। इसके बाद आप चैप्टर 3 की हेडिंग डालेंगे, रिसर्च मेथड एंड प्रोसीजर लिखेंगे। रिसर्च मेथड काफ़ी तरीके के होते हैं। अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूँ पीयर लर्निंग वाली, तो उसमें मैं रिसर्च मेथड यूज़ करूँगी एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च का पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो चैप्टर नंबर 3 में जब रिसर्च मेथड और प्रोसीजर की हेडिंग लगाऊंगी, तो मैं पूरा अपना प्रोसीजर बताऊंगी कि मैं एक्शन रिसर्च कैसे करूँगी। इसके अलावा मैं एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट भी बताऊंगी। अब देखो, रिसर्च प्रपोजल में आप पूरी रिसर्च तो करते नहीं हैं, उसमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होती हैं, तो आपकी जस्ट अजम्पशन होती है। तो देन आप रिज़ल्ट की हेडिंग डालेंगी और अपनी जस्ट अजम्पशन लिखेंगी कि ये आपके रिज़ल्ट आने वाला है अगर आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस होते हैं। अगर आपको साइटेशन देना आती है लिटरेचर रिव्यू में, जो हम साइटेशन करेंगे, अगर वो आपने अच्छे से कर ली एमएस ऑफिस पर, तो बिब्लियोग्राफी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। रेफरेंसेस होते हैं, आपके सोर्सेज बता रहे होते हैं कि आपने रिसर्च के कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए। इसके अलावा बजट, एट दी एंड आपको बजट भी बताना होता है कि आपके इस वाले रिसर्च को कितने रिसोर्सेज, कितने मनी यूज़ हो गए। इसके अलावा आपको टाइमलाइन भी बनानी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, टाइमलाइन भी आपको एट द एंड बनानी होगी कि आपकी रिसर्च को कितना टाइम लगेगा और आप फर्स्ट मंथ में कौन कौन से एरिया को कवर करेंगे, सेकंड मंथ में आप कौन कौन से एरिया को कवर करेंगे। क्योंकि पूरी एक टाइमलाइन होगी जिसमें फर्स्ट आप टाइम की हेडिंग डालेंगे, जिसमें होगा फर्स्ट मंथ। देन आप अपना बताएंगे कि आपने फर्स्ट मंथ में क्या क्या किया। क्या पता आपने सिर्फ लिटरेचर रिव्यू पढ़ा फर्स्ट मंथ में, तो आप लिख दोगे लिटरेचर रिव्यू। ओके, ये था रिसर्च प्रपोजल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।